नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ हिना पैगाम और आप देख रहे हैं नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज विद हिना पैगाम पावर्ड बाय सतमोला. Satmola, the symbol of quality. You're a girl. You should learn housework. You're a girl. You can't study too long. You should get married on the time. You're a girl. You can't play sport. You're a girl. You can't do bodybuilding. Bodybuilding and sport is only for boys. You're a girl. You can't do bodybuilding and sport. What will society say? What will people say? People will judge you and your character or the stereotypes in society that we come across. Today my guest is IFBB figure athlete, IFBB international judge, writer, World Peace Ambassador, and businesswoman. Today, my guest is one of those heroic women who paved the way for today's generation. Today, my guest is Dr. Rita Jairath. बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में. Thank you for having me. It's my pleasure. Who is Rita Jairath? I want to know more about you from yourself. Well, people know me more as a bodybuilding athlete and judge because that is how I have been in the public and in public view. But deep inside, I am just a woman with as many aspirations and as any woman can have in our society or anywhere in the world. And I am also a mother of a very wonderful child. He is in the neurodiverse spectrum. He's an autistic child and he has achieved a lot for himself. And I also have a business by the name of Jairath Wellness. And I am also a student of Kalaripayat, which is a martial art. And besides that, I'm working with the Paralympic Committee of India. Amazing. I'm in the advisory board and the Women Football Development Board. I'm a committee member in that. And also, I am a Bharatanatyam dancer and I'm learning classical music. So there are a lot of aspects, a lot of sides of me. So you can like me in any way you want. Amazing. How did you spend your childhood and adolescence? Tell us about your qualification and family background. All right. So I was born to a mother who had schizophrenia. So I had quite a, very eventful kind of childhood, if I may say. So it was a challenge, and I had been associated with the cause of mental health right from the very beginning. Since I was a child, I understood all these things in perspective. And so my childhood was difficult, but I was studying. My father was in the Air Force and he was in education. So there was a lot of stress and emphasis on academics. So my stream was science in the 12th, and I passed out from Tambram in Chennai. And then I joined Hindu College. I was doing physics honors in Delhi University, and then I had a gap. When I was in Tamil Nadu, I was already learning Bharatanatyam. I was already in sports. We used to play the games, inter-school games, and all that. But then I had a gap, and then later I started all these things again. I qualified again. I did my graduation in mathematics. And then I did my MBA, and then I also did my, education in computer science from the Department of Electronics and Computer Courses. Outstanding. Then I did a lot of fitness certifications from USA, from the International Sports Science Association, the Progressive Fitness in Advanced Nutrition. Then I got my honorary doctorate from the American University, which is affiliated to the United Nations. Okay. An honorary doctorate in women and child development, because I was listed in the Forbes for fighting and surviving a lot of challenges in my life. So my education has been in different fields, very diversified. I have done my Prabhakar in Indian classical music from Prayag Sangeet Samiti in Allahabad. I have done my Bharatanatyam certification from Tamil Nadu Bhavan. That was affiliated to the Madurai Tamil Nadu University. So there has been an entire spectrum of the kind of education, I may say, that of course there is there are a lot of arts involved, and then I was a science student, so very, very diversified.
वाओ, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमन यू आर। एक पुरुष प्रधान समाज में आपको बॉडी बिल्डिंग करने का मोटिवेशन कैसे मिला? So it was again a story, like just not that, okay, I wanted to do bodybuilding and I went and did that. My son was 15 years old, and around in 2004. And he had to train. Being an autistic child, he needed some support to build his self-esteem. And he also said that I want to have a body like Hrithik Roshan. That those were his puberty years. So I took him along with me to a gym and I started helping him out to train. That time I faced a lot of opposition. Everybody said that women should not do weight training, it's bad for you. And they kept troubling me so much that I had to prove that whatever I'm doing is not wrong. And it was not only that the weight training, but because we were kind of center of attraction. Because when there is a woman with a child who is special, who is clumsy, who is different, very unconventional, I was the center of attraction. It used to bother me that if there was a man coming and doing weight training, nobody would have bothered. Because when they see a woman who is all by herself and she's trying to help a child, everybody is out to pounce on her. That kind of, I had a gap at that time in my education, because around 15 years, I did nothing except looking after my child because he had challenges. But at that time, I realized that this is now the time that God has shown me a path to pursue, that I must be instrumental in making a change in the society. When one person, as we discussed earlier, when one person does something unconventional, when you break stereotypes, you get a lot of opposition. Exactly. But after that, people start realizing the goodness in it. Today, I see hundreds, if not thousands of girls. We have huge bodybuilding shows. Sometimes the girls outnumber the boys. We have so many divisions where girls are working everywhere. And I feel when I sit there as a judge, I feel that I am manifested all over again. So not only that, not only bodybuilding, it is like kind of presumed and perceived that bodybuilders are very manly. So my older incomplete journeys of Bharatanatyam and music, I pursued them that these can be done together. They are not contradicting. They help each other. So I am probably the only person who is doing these things together. And I want to again set an example that yes, it is possible. We create human possibilities and we add to the collective consciousness. Dr. Rita is not only a strong woman, but a strong mother too. In Indian society, still many parents don't allow their girls to work in professions such as bodybuilding and sports. What you want to say to them? स्पोर्ट्स में जो है बहुत इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं. जैसे कि आप अगर कोई कंपटीशन हारते भी हो तो आपको अपने फेलो कंटेंडर्स को रिस्पेक्ट करना आता है. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड अ ह्यूमन वैल्यू. सेकेंडली, जब हम स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, तो हम किसी ना किसी को, चाहे अपने देश को, चाहे अपने स्कूल को, चाहे कॉलेज को या स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है, लॉयल्टी रहती है, कमिटमेंट रहती है. हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और उनकी भी आस्था होती है. तो वी आर रिप्रेजेंटिंग, वी स्टैंड टॉल. तो दैट इज़ अनदर वंडरफुल थिंग दैट हैपन्स. सेकेंडली, स्पोर्ट्स में जब हमें अपने आप को पुश करते हैं बियॉन्ड आवर पोटेंशियल्स, तो ये ह्यूमन पोटेंशियल को, इट इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन पोटेंशियल, दैट व्हाट द ह्यूमन बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ. तो जब एक लड़की फिट रहती है और उसमें वो स्पोर्ट्स की वैल्यूज़ आती हैं, तो सारा समाज, सारा परिवार फिट रहता है. अब मैं खुद हूँ, मैं एक फ़िटनेस प्रोफेशनल भी हूँ. मेरे साथ जो भी मुझे जानते हैं, जब भी कई लोग मेरे को देखते हैं तो या तो अपना पेट अंदर कर लेते हैं या सोचते हैं कल से मैं जिम जाना शुरू कर दूंगा. तो मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी थोड़ा क्लोजली जुड़ जाता है, वो एकदम अनफिट कभी नहीं रह सकता. भारतीय समाज में एक स्टीरियोटाइप है कि अगर लड़कियां बॉडी बिल्डिंग करेंगी तो वो
बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? बॉडी बिल्डिंग कई सालों से होता चला आ रहा है। बहुत लड़कियां हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में पार्ट लिया है और उसके बाद उन्होंने फैमिली अपनी बनाई है, बच्चे हुए हैं और उनको भी उन्होंने वो बॉडी बिल्डिंग कराती हैं। तो अब तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में, बाहर तो और भी बहुत सारे हैं। बहुत मिस ओलंपिया रह चुकी हैं। मैं पर्सनली भी जानती हूँ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं कि जिन्होंने सारा हर्ल एक फिजिक चैम्पियन थी, निकोल विल्किंस एक फिगर चैम्पियन थी, अभी रिसेंटली उसको बेबी हुआ है, 5 साल वो मिस ओलंपिया रही। तो ऐसे तो बहुत हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। ये दीज आर ऑल मिथ्स। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने बॉडी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हम कुछ भी बैंड सब्सटेंसेस लें। ये हर स्पोर्ट में होता है, हर स्पोर्ट में, क्योंकि आप देखिए कि जो भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, जैसे कि मैं पैरा पावर लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो सारे जो भी कॉमनवेल्थ में भी गेम्स हुए थे, जो भी एथलीट जाते हैं उनका वाडा नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन है, उनके टेस्ट होते हैं कि इस एथलीट ने कुछ भी बैंड सब्सटेंस नहीं लिया है परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। मेहनत से और साधना से और सच्ची तपस्या से जो चैम्पियन बनता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है और उसमें कभी कुछ गलत नहीं होता। जहाँ तक वेट ट्रेनिंग का सवाल है, हम लोग हर औरत को रेकमेंड करते हैं कि वुमेन मस्ट डू वेट ट्रेनिंग। जो आप देखिए, जो पहले गांव होते थे वहाँ पे जो औरतें हैं इतने भारी भारी तसले उठा उठा के खेतों में काम करती थी, या मटके उठा के, बच्चे उठा के दूर दूर तक चलती थी। तो डंबल्स तो कुछ भी नहीं है, डंबल्स एंड बारबल्स आर नथिंग। अगर तुम जैसे वुमेन लेबरर्स हैं, वो कितना हैवी वर्क करती हैं, तो जो काम करते हैं तो उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है। मेनोपॉज का जो पीरियड होता है आफ्टर 50, जब पीरियड्स बंद होते हैं, उस टाइम वेट ट्रेनिंग करने से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, लीन मसल मास कम नहीं होता। आप देखिए, उससे लीन मसल मास जिस औरत का बड़ा होता है उसको कभी भी लाइफस्टाइल डिसीजेस नहीं होंगी, उनका मेटाबॉलिज्म अप रहेगा, उनको ब्लड शुगर हाई नहीं होगा। मैं अपने 50s में हूँ, मेरा बेटा 34 का है, मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी है, सब कुछ करा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ, वेट ट्रेनिंग रोज़ सुबह उठ के करती हूँ। मेरे को आज तक एक भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि और मैं दिन में कम से कम 15 से 16 घंटे काम करती हूँ। 3 आर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसमें बहुत हैवी फिजिकल परफॉर्मेंस होता है और बैक टू बैक करती हूँ। तो 50s में आके अगर मैं कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ, बस वो इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग करती थी, क्योंकि मैं एक्टिव लाइफस्टाइल है मेरा। और हम पहले ही औरतों को बोल देते हैं कि तुम औरत हो, घर में बैठ जाओ। अगर आपने सही में एक कंप्लीट वुमेन बनना है, अपने परिवार की अंत तक सेवा करनी है, तो आपको फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। उसके लिए अपने बॉडी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और कंडीशन करना पड़ेगा। तो कहाँ से स्पोर्ट्स खराब हो गया औरतों के लिए? ये तो स्टीरियोटाइप, मैं तो स्टीरियोटाइप अगर फॉलो करने के लिए भी बोलूं कि आपने अगर एक कंप्लीट वुमन बनना है और अपने घर की अच्छे से देखभाल करनी है, अपने मरते दम तक सेवा करनी है, तब तो आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा, इवन अगर आपको स्टीरियोटाइप फॉलो करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और हमारे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनको देखिएगा तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज एक्चुअली अ मस्ट। Let's take a break. Continue watching, know more about your favorite personalities with Hina Paigam, powered by Satmola. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी तब, और आज में महिलाओं की पार्टिसिपेशन में आए परिवर्तनों को आप कैसे देखती है? तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी तो कोई भी नहीं था, मैं ही अकेली थी। मेरे को ट्रेनिंग भी यूएस मैंने ट्रैवल किया, शायद वो मेरे लिए अच्छा भी था क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला जो आज के एथलीट्स को नहीं मिलता। मैं कई बार यूएस गई, एक बार मैं कुवैत भी गई
और बहुत अलग अलग कोचेस से मैंने बहुत जगह ट्रैवल करके बहुत कुछ सीखा। तो मेरा जो एक्सपोजर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे में इनिशिएटिव था। तब मैं बस अकेली जाती थी, खुद ही मेडल जीतती थी, घर आ जाती थी, रख लेती थी, और यहाँ इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही मैं अकेली करती रही, किसी को नहीं पता था। सब बोलते थे कि ये क्या कर रही है, मतलब क्यों कर रही है, आपको क्या मिलता है ये करके। तब मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी, कहीं चलती थी तो सब लोग मेरी तरफ देखते थे कि क्या है। लेकिन अब हज़ारों लड़कियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत खुशी से करती हैं। ये भी है कि अब उनके परिवार वाले, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के भाई हैं, वो बहुत प्राउडली लेके आते हैं कि हमारे घर में ये है। पूरा परिवार आता है उनको लेके और खूब उनको चीयर करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मुझे कहते थे कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए, अब देखिए। और मैं बैठती हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एज अ जज बैठती हूँ। और जितनी भी लड़कियां हैं मुझे बहुत प्यार करती हैं, बोलती हैं कि हाँ रीटा मैम बैठी हैं तो सब सही होगा। तो क्योंकि एक वुमेन जजिंग पैनल में है एज ऑफ नाउ, IFPB में, एशिया में आई एम द ओनली वुमेन जज इन द इंटरनेशनल पैनल। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर अब तो बहुत आगे आगे बहुत सारी आएंगी। एथलीट में भी पहले मैं ही थी, फिर बहुत सारी आ गई। तो ये जब देखते हैं कि एक कहाँ ज़ीरो था, आज एक बिल्कुल बहुत बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री खड़ी हुई है। यही गर्ल्स के लिए आज बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, राइट फ्रॉम बीइंग अ ट्रेनर टू बॉडी बिल्डिंग में तो टैनिंग, मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, इसका भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है। स्टेज मार्शल का और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। मैं अपना सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च करने जा रही हूँ, और वो भी ऐसा सप्लीमेंट है कि इट्स नॉट जस्ट कि हाँ वे प्रोटीन है जैसे सब लोग कर रहे हैं। मैंने देखा था कि ये भी वन ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि मैंने देखा था कि हर स्पोर्ट्समैन आज उन्होंने एक्सरसाइज करी या अपनी प्रैक्टिस करी, कल वो उठते हैं तो उनका शरीर दर्द हो रहा होता है, थका होता है, सोरनेस होती है, पेन होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, पाइन बाग जो चीर का पेड़ होता है उसका एक्सट्रैक्ट है, उसको आइसोलेट किया है, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। उससे हमने जो सोरनेस एलिमिनेट हो सकती है उसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जॉइंट्स में स्पोर्ट्स पर्सन को इन्फ्लेमेशन ना हो और उनको अच्छी नींद आए, उनकी स्किन अच्छी रहे, सोते टाइम भी उनका फैट बर्न हो, तो ये प्रोडक्ट्स हमने निकाले हैं ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बहुत अच्छी सपोर्ट मिले। और एवरीथिंग इज़ 100% नेचुरल, उसमें कुछ हमारे हर्ब्स हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, तो हमने उसको बस करेक्टली फॉर्मुलेट किया है। तो ये भी फर्स्ट है। तो बहुत चीज़ों में हमने एक फ़र्स्ट चीज़ करी है। और यस, डिफरेंस आपने पूछा कि पहले तो कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री खड़ी हुई है और इसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। आज की नीड है, क्योंकि पहले सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था, पहले फिज़िकल वर्क एक्टिविटी बहुत होती थी इवन डेली कामों में। अब बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, बहुत कंफर्ट हो गया है। पहले के बच्चे स्कूल जाते थे साइकिल पे, अब बच्चे कार में जाते हैं। तो उन लोगों को आज की डेट में जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो डेस्क पर बैठ के कंप्यूटर के पीछे मेहनत होती है। अगर आप चल फिर नहीं रहे हो, वो सैक्रिफाइस है। तो फिज़िकल एक्टिविटी मिलती नहीं है। और जब इसीलिए जिम्स की बहुत ज़रूरत है कि लोग जाएं और थोड़ी एक्सरसाइज करें, नहीं तो यही चीज़ें जो हैं ये लाइफस्टाइल डिसीजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दिस इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑल्सो, क्योंकि पहले अब जो हेल्थ केयर है उसको देखा जाता है ओनली एज क्यूरेटिव, कि जब बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स आ जाते हैं हेल्थ केयर में, वो तो जब सब खराब हो जाता है तब वो दवाई देने आ जाते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वो है कि आप 50 इयर्स के होके आप अचानक एक दिन बटन दबा के बुढ़े नहीं हो जाते। ये आप जब 30 के थे तब आपका क्या लाइफस्टाइल था, वही चीज़ जो है धीरे 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 हमारे अंदर जो वियर एंड टियर इतना स्लो होता है, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है बाद में। तो जब यंग एज से लोग एक्टिव रहेंगे, स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे, अपने आप को वैसे कंडीशन कर देंगे, तो वही लोग जाके जब ओल्डर एज होगी उसमें उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, उनका अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ एटीट्यूड अच्छा रहेगा। अभी जो ओल्डर लोग हैं हमेशा कहते हैं हमारे ज़माने में ये अच्छा होता था, अब की जनरेशन बहुत ख़राब है। ये हमेशा से चला आ रहा है।
हाँ, लेकिन जब जब हमारी खुद की जनरेशन अच्छी वैल्यूज़ को दे विल कैरी इट फॉरवर्ड, सो देन दिस गैप विल गो। ये जो जनरेशन गैप है दैट शुड मिनिमाइज। वी शुड रिस्पेक्ट the younger generation also, because the kind of hard work they do in such a competitive world is really adorable, really commendable. Talk about your trips in other countries. In which countries have you represented Bharat as a Bharati women bodybuilder? सीखने के लिए भी कि जो वुमेन बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे ट्रेनिंग करती हैं, तो ये सीखने के लिए मैं यूएस गई थी और मेरा सबसे पहला कंपटीशन भी यूएस में ही था। तो कई कॉम्पिटिशन्स मैंने वहाँ किए, बार बार जाके फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और फोर्ट लॉडरडेल में। उसके बाद मैंने मैड्रिड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, प्राग में, चेकोस्लोवाकिया, where I did amateur Olympia. Then I represented in Barcelona also. Wow. And one of my competitions, not very long ago, 2017 में San Marino Pro इटली में मैंने compete किया था। और आर्नोल्ड क्लासिक हांगकांग, आर्नोल्ड क्लासिक में अभी तक किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया है इंडिया को, एंड आई वन सिल्वर देयर हांगकांग में, आर्नोल्ड क्लासिक एशिया। और एमेच्योर ओलंपिया एशिया भी मैंने जीता था, दैट वाज आल्सो इन हांगकांग। तो बाकी तो मैंने कुछ इंडिया में किए, बट मेरे मेजरली जो हैं आउट ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन्स रहे। भरतनाट्यम की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे फादर एयरफोर्स में थे और उनकी पोस्टिंग ताम्रम में हुई थी, मद्रास में, अब चेन्नई बोलते हैं। तो वहाँ का डांस है भरतनाट्यम, दे आर वेरी वेरी अवेयर इन आर्ट, और वो लोग बहुत एक्टिव हैं आर्ट्स में, लिटरेचर में। तो सब लोग सीखते थे और मुझे भी बहुत मन किया सीखने का। तो मैंने वहाँ 3-4 साल सीखा। उसके बाद मैंने गांधर्व महाविद्यालय में, वहाँ पे भी मैंने 4-5 साल सीखा। उसके बाद गैप आ गया और मैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हो जाती थी बार बार, तो मेरी एक ये इनकम्प्लीट जर्नी थी। तो बस मन में रहता था कि मैं करूँगी ज़रूर, लेकिन मैं बहुत टाइम तक कर नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद बेटे का ध्यान रखने लगी और फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, फिर बॉडी बिल्डिंग भी हो गई। उसके बाद जब बॉडी बिल्डिंग में सब बोलने लगे कि यू लुक लाइक अ मैन और ये सही नहीं है, तो आई सेड आई एम स्टिल द वुमेन इनसाइड। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तमिलनाडु भवन में क्लासेस होती थी, तो मैं वहाँ गई और मैंने इसको वापस स्क्रैच से स्टार्ट किया। और वहाँ पे भी मैं काफ़ी साल हो गए अब तो सीखते हुए, और मैंने परफॉर्मेंस भी करी। फिर मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम भी दिया। आई स्टूड फर्स्ट देयर, आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी कॉम्पिटिशन्स, उसमें भी मैंने जीता। तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ श्री राम कला केंद्र में। तो ये आर्ट्स जो है ये तो लाइफ लॉन्ग होती हैं, तो ये तो कई जन्म होते हैं, साधना होती हैं हमारी जो क्लासिकल आर्ट्स हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसको मैं जितना मेरी को टाइम मिलता है मैं उसको परस्यू कर पा रही हूँ और कंटिन्यू कर पा रही हूँ। So much laziness in our generation. What fitness tips you would like to give to the new generation? I actually certainly feel that the new generation is not lazy at all. They are just jailed in one place behind the desk. They are working very hard, but the kind of stress they have, it kind of bogs them down. It is their nerves are stressed, their central nervous system is stressed. If they start realizing that physical activity, going for a walk, training will actually help them to feel happy, these happy hormones, the endorphins are released if you are engaged in physical activity. It just takes one initiative to start doing it, and then you will fall in love with the process. Especially when you are training and then you start seeing the results in your body, that you're able to do so much, you're looking so much better, you feel happy and energetic from within, then only you're living your life to the fullest. So सबसे पहले तो हमने अंदर अपने मन में ये एक संकल्प करना है कि हमने फिट और स्ट्रॉन्ग रहना है. Then all your laziness will vanish. And eat good things. Learn to condition your mind. You don't need junk food to enjoy. Every vegetable, every fruit in its raw form has its own natural flavor, which we must respect. So food should be
for nourishing the body. Food should not be for entertainment. So if we start believing that this, what I'm eating, is going to make me strong and capable, and I will be able to reach my fullest potential in life, I will be able to reach the top if I eat this food. You will respect what you eat. You will not eat just any toxic thing, any dirty thing. So you must eat well, sleep well, exercise well, and stay happy. It is easier said than done, but when you do it and get the result, it is ecstatic. So just believe in the process. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। सतमोला ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। Thank you. Be a change to see the change in the world. A special thanks to Satmola Group of Companies and Mr. Anil Mehtal for sponsoring our show. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।